Hello students, how are you? Hope you are fine at your places. Now students, today we will discuss connectivity in MySQL with Python. Our topic is importing and exporting data between MySQL database and pandas. Now students, when we have to create a database, then we have to enter record in this database through a programming language. In class plus one you learn that you can directly enter data in MySQL database by using insert command. On SQL prompt we write the insert command. We create the database, and by using that database we create the table, and in that table we insert the record by using insert command, and we update the records, we delete the records. But in class plus 2 there is connectivity. We have to create a link with the programming language Python and MySQL. You have to insert record through Python. You have to update record through Python. Instead of entering record directly, you have to enter record through a programming language, and in our case this is Python. So let me start our topic, how to insert record, how to update record. So students, first the requirements for this topic for importing and exporting data between Python and MySQL. We require a latest version of Python, and in our case we are using Python 3.7, and MySQL. Students, in class plus one we were using MySQL 1.5 like this, but for connectivity with MySQL and Python we have to install a latest version of MySQL. Now I have installed MySQL 8.0, so you have to download MySQL 8.0 from MySQL website. It is open source program, so you can download it from MySQL website, and you have to write mysql.com downloads. In downloads section you can download your MySQL Enterprise Edition, which will contains MySQL database, storage engine, MySQL connectors. This is most important. You have to download MySQL connectors also, and by using customer download you can download it from MySQL website. It is open source software, you can download it. Then the third important software is MySQL connector. You have to install MySQL connector separately. After installing MySQL you have to download MySQL connector also. Students, when you will download MySQL full package, then it will download MySQL connector also. You have to install it, and then on command prompt, on DOS prompt, you have to use pip command. Pip install MySQL connector. On DOS prompt you will write, open the command prompt, you have to write pip command. You have to use pip command. Pip install MySQL hyphen connector hyphen Python. Pip install MySQL hyphen connector hyphen Python. Students, you have to use this command when you will
apply this command, then it will take some time and install MySQL connector for Python. Now in my computer it is already installed, so we will go to next step. So students, see carefully, this command you have to use on command prompt, that is DOS prompt. To open DOS prompt, just write cmd. In run, just write, or in search, just write cmd. When you will write cmd, then it will open command prompt. cmd लिखोगे तो command prompt आ जाएगा, command prompt. Otherwise, you can use any method to open the command prompt. You have to open the command prompt. After opening it, write the command pip install connector -python. So by using this method, you can install MySQL connector. After installing MySQL connector, you can connect your database with by using Python script. With Python script. So student, there is 7 steps for creating database connectivity with Python. So first step is start Python. First you have to open Python language. It will open the Python interface. Open it. Now the second is importing the packages required for database programming. What package is required? Students, that is MySQL connector. We install it. Then first command which you will use to import MySQL.connector. You have to import this package for making successful connection between Python and MySQL. Then the third command which we will use, we will open the connection for database. We will write the command for creating connection with a particular database of MySQL. So we will discuss this later on. Now the fourth step is creating a cursor instance. Students, in fourth step you have to create a cursor. Cursor क्या है? It will access the records. Actually cursor is the location of a table. कौन सी लोकेशन के ऊपर आपका कर्सर होगा when you will access the record? By default it is on first record. So for this we have to create cursor. Cursor object हमें create करना पड़ेगा. Then you can access a database. Then the fifth step is execute query. Now you have to, when you create your link with database, and then you can write query to access the records, select queries, to insert new records, insert query, to update record, update query, to delete record, delete query. So MySQL में ये सारी हमने queries की हुई है. रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड कैसे अपडेट करना है, रिकॉर्ड कैसे डिलीट करना है, जो भी SQL queries होगी वो हम इस स्टेप में जाके लिखेंगे. Then the sixth step is extract data from result set. So students, you know, when we create cursor instance, then it will access data as a result set. Result set is a group of records. It holds the complete table, that is group of record, and when you have to access records one by one, row by row, you have to apply some filters. When you access a particular data from a result set, then it will create that result set and access particular records. For that purpose we will create a result set. Otherwise, by using select query, we will access the all records. And the last step is clean up the environment. We have to close the package, we have to close the connection. So let me start with first step for creating connection, that is starting Python. First you will open
Python. Open the Python's editor where you can create your Python's script, where you will write the Python program. Then next, import the packages required for database programming. अब इसके लिए क्या क्या packages हमें चाहिए? First you will write import mysql.connector. You will write this command, import mysql.connector. This is important package and it's most important for connectivity. सबसे पहला जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया कि MySQL connector इंस्टॉल करना पड़ेगा. If your MySQL connector installed successfully, then you can use this package, import mysql.connector. So you will write this command as follow, import mysql.connector, or you can also declare a identifier MySQL type, that is MyDB. In my case I declare MyDB. This is an identifier. You can use any identifier of your choice. अब मैंने इसको नाम दे दिया, ये मैंने आइडेंटिफायर डिक्लेयर किया किस टाइप का, mysql.connector पैकेज की टाइप का मैंने आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर लिया. अगर मैं इसको डिक्लेयर ना करूं तो मेरे को पूरी कमांड लिखनी पड़ेगी mysql.connector, अदरवाइज I can use MyDB. So it's your choice, आप किस तरह से लिखना चाहते हैं. अब मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूंगा, जब मैं अभी कनेक्शन क्रिएट करूंगा तो आपको वहां समझ आ जाएगा कि यहाँ पे MyDB हमने क्यों किया, आइडेंटिफायर क्यों डिक्लेयर किया. So let me go for third step. This is open a connection to MySQL database. Now in third step we will create connection with MySQL. अब एक्चुअल कमांड जो है कनेक्शन क्रिएट करने की ये आ गई by using connect method. You will establish your connection with MySQL database by using connect method. So with MySQL connector package you will use connect method. To establish connection we require the following parameters. We have 4 parameters. These are important parameters which you will assign to connect method, which you will use with connect method. The first parameter is host name. Students, this is the server name, host server name, and it is local host. You know, for all systems it is common, local host. This is the host name, this is the server name. Then next is the username of your MySQL. Student, when you have installed your MySQL, then you have passed the username. By default it is root. In our case this is also root. हमने इसको root ही रखा, चेंज नहीं किया. Username is root. And the second is password. Student, password जब आपने इसको इंस्टॉल किया था, जो भी पासवर्ड MySQL का सेट कर रखा है MySQL का पासवर्ड आ जाएगा. एंड द फोर्थ वन इज डेटाबेस. किस डेटाबेस के साथ आपने लिंक क्रिएट करना है. फोर्थ पैरामीटर डेटाबेस होगा. कनेक्ट में फोर्थ पैरामीटर आप डेटाबेस पास करोगे. तो ये पैरामीटर से सिंटेक्स क्या है इसका, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, यू विल डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर कर लिया, कोई भी आइडेंटिफायर हो सकता है ये. देन mysql.connector.connect. अब स्टूडेंट मैंने पैकेज का पूरा नाम लिख दिया. इंस्टेड ऑफ यूजिंग MyDB मैंने यहाँ पे पूरा नेम लिख दिया. आप यहाँ पे MyDB.connect भी लिख सकते हो. आप इसको MyDB.connect भी यूज कर सकते हो. अब स्टूडेंट्स इसको कनेक्शन ऑब्जेक्ट, मान लो मैंने यहाँ पे mycon दे दिया. पाइथन में आप इसको mycon लिखोगे. mycon इज इक्वल टू, अब MySQL कनेक्टर पैकेज का मैंने पूरा नाम दे दिया. आप हमने अगर MyDB डिक्लेयर किया है, यू कैन राइट इट लाइक MyDB.connect, और उसके अंदर आप इसका पूरा पाथ दे सकते हो. मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे mycon जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया, कोई भी कनेक्शन ऑब्जेक्ट. देन MySQL.connector, इंस्टेड ऑफ यूजिंग
the complete name of package, I use the mydb identifier, जो मैंने पीछे डिक्लेयर किया था वो आइडेंटिफायर मैंने इसमें यूज कर लिया। यहाँ पे मैंने लिखा था mydb, तो वो आइडेंटिफायर का नाम भी लिख सकते हो। अदरवाइज आप mysql.connector जैसे इस एग्जांपल में हमने कंप्लीट यूज किया है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। आगे जो है इसका होस्ट नेम, जो होस्ट नेम होगा दैट इज लोकल होस्ट, इसको सिंगल कोटेशन में लिखना है आपने, लोकल होस्ट, दिस इज द होस्ट नेम, लोकल होस्ट। Then the username, student our user is root, you will write username, then password, student password के लिए आप PASSWD लिखोगे, इसको याद रखना, पूरा पासवर्ड नहीं लिखना है, इसकी जो कमांड होगी वो होगी passwd, पासवर्ड इज इक्वल टू, अब हमारे केस में जो मैंने पासवर्ड सेट किया है उसका R कैपिटल OOT@123, दिस इज द पासवर्ड ऑफ MySQL। देन द डाटाबेस, स्टूडेंट सिंटेक्स में जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी होती है दैट इज ऑप्शनल, आपने डाटाबेस के साथ लिंक करना है तो आपको ये डाटाबेस का पैरामीटर पास करना कंपलसरी होगा, अदरवाइज आप इसको अगर नहीं भी करोगे तब भी ये इस MySQL के साथ कनेक्शन क्रिएट कर देगा, बट उस पर्टिकुलर डाटाबेस में नहीं जाएगा। तो हमने डाटाबेस में जाना है, सो दैट वी हैव टू राइट डाटाबेस, इन आवर केस डाटाबेस इज स्कूल, मैंने जो डाटाबेस क्रिएट किया है दैट इज स्कूल, तो यहाँ पे मैंने डाटाबेस का नाम लिख दिया है। सो स्टूडेंट दिस इज द कमांड which you will use to create connection. By using this command you will create connection. mycon, this is identifier, this is an object, कुछ भी हो सकता है, आप अपनी चॉइस का कोई भी आइडेंटिफायर कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लो। देन mydb हमने पहले डिक्लेयर कर लिया हुआ है, mydb my database, we will connect our database by using host name that is localhost, username root, password is root@123 and database is school. So this is the command. So हम next example में इसको देखेंगे। This is our first example. We write import mysql.connector as mydb, mycon, this is connection object, mydb, this is identifier of mysql.connector type. Then use connect method, host name is localhost, comma user is root, password is root@123 and database is school. Now if the connection created successfully, then it will display database connected successfully. For checking this we use a isConnected method. isConnected method is used to check whether the connection is successfully connected, otherwise not. So if mycon dot is underscore connected, this method is used to check, by default value is true, so there is no need to write the value, by default it is true. If it is true then it will print database connected successfully. So when you will execute this program then it will display this output, database connected successfully. अगर ये आपका कनेक्शन हो गया सक्सेसफुली तो ये इसको डिस्प्ले कर देगा, इट मींस अगर ये कर रहा है इट मींस कि हमारा कनेक्शन इसमें हो गया है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज क्रिएट ए कर्सर इंस्टांस। स्टूडेंट इसको समझना है कर्सर इंस्टांस क्या है। ए डेटाबेस कर्सर इज यूजफुल कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस कनेक्टिविटी। When we connect a database through Python script, then query is sent to the server where it get executed, and the result set is the set of records retrieved as per the query. Query ने जो records access किए that is result set. It will be sent over the connection to you in one go.
वो पूरे का पूरा रिजल्ट सेट जो है, जितने भी रिकॉर्ड उसने अकॉर्डिंग टू योर क्वेरी, जितने भी उसने रिकॉर्ड एक्सेस किए, वो उसने पूरे के पूरे आपको सेंड कर देने हैं। इफ यू वांट टू एक्सेस द रिट्राइव्ड डाटा रो बाई रो, अगर आपने वो पूरा इकट्ठा नहीं चाहिए, रो बाई रो आपको वो चाहिए, then a special type of control structure called database cursor is required. For this purpose we use database cursor. It can be created by using cursor method. Cursor method है, उसको यूज करके हम cursor create करेंगे. It will access all the records retrieved by query and allow you to traverse the result set row by row. एक एक रो को उठाएगा. Syntax for creating cursor is cursor object, then connection object dot cursor. This is the cursor object is equal to connection object dot cursor, like this. cursor object हमने इसको नाम cursor ही दे दिया. आप कोई भी आइडेंटिफायर यूज कर सकते हो, ये जरूरी नहीं कि आपने cursor ही रखना है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो. Cursor is equal to mycon. This is my identifier object, connection object, mycon dot cursor. तो mycon अपने कनेक्शन को यूज करके हम वो कर्सर की लोकेशन पे चले गए और वो वैल्यू असाइन कर दी कर्सर ऑब्जेक्ट को. So now the next step is we have to execute query. We have to write SQL query. After creating the cursor, using execute method, we can execute SQL queries with cursor object. This is the most important task. You know, when you create connection with MySQL, after that you have to access record, and you can access record by writing a query, MySQL query, and you will write MySQL query by using execute method. So let me see. The syntax for executing query is cursor object dot execute. जो आपने cursor object डिक्लेयर किया है, हमारा नाम है cursor dot execute then query. स्टूडेंट आप इस क्वेरी को एक स्ट्रिंग में भी ले सकते हैं. पहले एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लो और उसको उसमें वैल्यू असाइन कर दो. आप इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. हमने मान लो कर्सर ले लिया SQL इज इक्वल टू, आप इसके अंदर ही क्वेरी स्ट्रिंग पास कर दो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. हमने इसके अंदर ही असाइन कर दी वैल्यू. SQL को हमने SQL एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने ये क्वेरी जो है वो उसको असाइन कर दी. और आप यहां पर आप एग्जीक्यूट में उसका जो पैरामीटर है वो SQL पास कर सकते हैं. कर्सर डॉट एग्जीक्यूट SQL, आप इसको इस तरह से लिखोगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और इसमें पैरामीटर हम SQL पास कर देंगे. इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट्स योर चॉइस, आप किस तरह से लिखना चाहते हैं. आप इसको एग्जीक्यूट SQL इस तरह से लिखना चाहते हैं, या फिर आप इसको पूरी क्वेरी लिखना चाहते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आपने पूरी क्वेरी लिखनी है तब भी ये काम करेगा. इट डिपेंड्स अपॉन यू. सो इन फिफ्थ स्टेप यू हैव टू यूज एग्जीक्यूट मेथड फॉर क्रिएटिंग कनेक्शन. नाउ लेट वी सी इन दिस एग्जांपल. फर्स्ट we declare the object package MySQL, we import the package MySQL connector, then we create the connection, then we check the connection. If it is false, then it will display message error in connection, otherwise it will create cursor, then execute query, select star from student, then we apply a loop. For row we declare an रो आइडेंटिफायर, आपने आई ले लिया, जे ले लिया, कोई भी नेम ले लिया. यहाँ पे फॉर रो इन कर्सर फर्स्ट लोकेशन. मैंने पहले भी आपको बताया कि व्हेन यू विल ओपन एनी टेबल देन बाय डिफॉल्ट इट विल गो टू टॉप मोस्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, दैट विल बी द एक्टिव रिकॉर्ड.
So when we print it, then it will print all the records one by one. You can see in output our first record is Amit, the roll number is 1, name is Amit and address is Una. This is our table. MySQL आप ओपन कर लो, आप उसमें चेक कर सकते हैं. यहाँ पे हमने लिखी select star from student. मैंने कुछ एक रिकॉर्ड इसमें ऑलरेडी डाल रखे हैं, कुछ एक रिकॉर्ड मैंने डाल दिए. वहां पे मैंने अप्लाई किया select star from student. मैंने 4 रिकॉर्ड डाले थे, तो 4 रिकॉर्ड जो है वो उस टाइम जो 4 रिकॉर्ड थे वो इस तरह से इसने डिस्प्ले कर दिए. तो ये लूप से इसने इस तरह से ये रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर देगा. क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवाए तो इसने वहां पे आपके MySQL प्रॉम्प्ट के ऊपर, सॉरी पाइथन शेल के ऊपर इसने ये रिकॉर्ड जो है वो इस फॉर्म में डिस्प्ले कर देने हैं. तो ये रिकॉर्ड वहां पे आ गए, बट MySQL में ये इस तरह से रहेंगे रिकॉर्ड 1 2 3 4 एंड देयर नेम. स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने इसमें रिकॉर्ड एंटर करने हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको इसके ऊपर एक 5 या 6 नंबर का प्रोजेक्ट भी बनाने के लिए आएगा जिसमें आपको यही प्रोग्राम यूज करना है. तो इसको बड़ी केयरफुली करना है आपने. कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉल मी. नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम रिजल्ट सेट. अब स्टूडेंट पिछले में हमने डायरेक्ट रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर दिया था, बट हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है बाय यूजिंग रिजल्ट सेट. अब रिजल्ट सेट जब क्रिएट हो गया, उस रिजल्ट सेट से 1 बाय 1 रिकॉर्ड हम उठा सकते हैं. तो बीच में हमने एक रिजल्ट सेट क्रिएट किया है. We have some fetch methods that can be used to extract records from the retrieved result set. पिछले में हमने डायरेक्ट रिकॉर्ड्स सारे एक्सेस कर लिए थे. अब हमारे पास रिजल्ट सेट से कुछ एक मेथड्स को यूज करके, जैसे यहाँ पे fetch all मेथड मैंने दिया, fetch one मेथड है, fetch many मेथड है, कुछ मेथड्स हैं हमारे पास जिनको हम यूज करके रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं. सो ये कौन कौन से मेथड है? पहला मेथड है fetch all. It will fetch all records from result set. It will return all records retrieved as per query in tuple form. tuple की फॉर्म में वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स ये डिस्प्ले कर देगा जब आप fetch all को यूज करोगे. सेकेंड मेथड है, इनको हम मैं इसकी एग्जांपल भी करवाऊंगा. अभी पहले हम सारे देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं. सेकेंड है fetch one मेथड. It will fetch one record only. ये जो टॉप का रिकॉर्ड होगा जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो फर्स्ट रिकॉर्ड को ये फेच कर लेगा. नेक्स्ट टाइम आप fetch one करोगे तो नेक्स्ट जो भी रिकॉर्ड होगा उसको एक्सेस कर लेगा. नेक्स्ट टाइम आप फिर fetch one यूज करोगे तो नेक्स्ट जो है रिकॉर्ड उसको डिस्प्ले करेगा. 1 बाय 1 ये रिकॉर्ड्स को उठाता जाएगा. जितनी बार आप अपनी स्क्रिप्ट में fetch one को यूज करोगे उतनी बार वो नेक्स्ट रिकॉर्ड को उठाता रहेगा. It will return one record from the result set as a tuple or list. It will start fetching from first record and so on. Third is cursor object, cursor fetch many. In fetch many, you will pass a parameter value. You will pass a value. How many records you want to fetch? अब जब भी आप स्क्रिप्ट को रन करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट रिकॉर्ड पे ही होगा. आपने लिखा fetch many, आपने 3 पास किए तो उसने फर्स्ट 3 रिकॉर्ड ही उठा के डिस्प्ले करने हैं. तो हम इसको यूज करेंगे. उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है रो काउंट. रो काउंट, अब इसमें हम रोज को काउंट करते हैं कि कितनी रोज उसने एक्सेस की. अब आपने fetch one लगाया तो उसमें वो एक ही रो को एक्सेस कर रहा है तो रो काउंट 1 आ जाएगा. अगर fetch all कर रहा है तो जितने रिकॉर्ड है उसमें सबको कर रहा है तो रो काउंट में उसकी वैल्यू बता देगा कितने रिकॉर्ड थे, 4 थे, 5 थे, 7 थे, 10 थे, जितने भी उस टेबल में रिकॉर्ड्स होंगे वो डिस्प्ले कर देगा. तो रो काउंट आपको अच्छी तरह से पता है कि ये टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करेगा और कर्सर ने कितनी एक्सेस की है वो बता देगा.
So let me see example number 1 in which we use fetch all method. अब बाकी तो सारा वही है, ऊपर से कर्सर डिक्लेयर किया हमने, कमांड एग्जीक्यूट की, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देन हमने एक कर्सर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया डाटा, जिसके अंदर हम इस मेथड को असाइन कर रहे हैं। कर्सर का रेफरेंस देके कर्सर डॉट फेच ऑल, उस कर्सर में से सारे के सारे रिकॉर्ड एक्सेस किए और हमने डाटा नाम के ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिए। दूसरा मैंने इसमें एक काउंट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, काउंट ऑब्जेक्ट के अंदर ये रो काउंट को कर रहा है कि कितनी रोज उसने फेच की, कर्सर की कितनी रोज है वो डिस्प्ले कर देगा। सो वी प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्राइव्ड इन रिजल्ट सेट, वो काउंट की वैल्यू दे दी और उसके बाद हमने लूप लगा दिया, 1 बाय 1 उन रिकॉर्ड्स को ये डिस्प्ले कर देगा। तो आप आउटपुट देख सकते हैं, पहले आ गया टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्राइव्ड इन रिजल्ट सेट इज 4 और उसके बाद उसने लूप से वो सारी वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया। क्यों? बिकॉज वी हैव यूज फेच ऑल रिकॉर्ड। स्टूडेंट आपने देखा होगा कि अगर हम फेच ऑल ना भी यूज करें तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम से तो वो सारे रिकॉर्ड तब भी दे ही देगा वो, और आप इसका अल्टरनेटिव फेच ऑल को भी यूज कर सकते हैं। ये पूरे का पूरा रिकॉर्ड जो है वो जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सारे डिस्प्ले कर देगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट में वहां पे हमें ये फैसिलिटी है कि आप वहां पे वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं। सिलेक्टेड रिकॉर्ड में करोगे, अगर आप फेच ऑल करोगे तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगा। इन नेक्स्ट एग्जांपल वी यूज फेच मैनी रिकॉर्ड। अब स्टूडेंट इसमें हमने दो रिकॉर्ड को ही एक्सेस किया है, टॉप 2 रिकॉर्ड्स, तो बाकी सारा वही है। मैंने फेच मैनी मेथड लगा दिया, इसमें फेच ऑल की जगह मैंने फेच मैनी लिख दिया और वहां पे पैरामीटर पास कर दिया 2, तो टॉप के 2 रिकॉर्ड को ये उठा के डिस्प्ले कर देगा। आउटपुट में आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्राइव्ड इन रिजल्ट सेट इज 2, काउंट की वैल्यू होगी 2 और जो 2 रिकॉर्ड है उनको इसने डिस्प्ले कर दिया, देयर रोल नंबर, देयर नेम एंड देयर एड्रेस। नाउ in third example we use fetch one record. fetch one मेथड से ये एक ही रिकॉर्ड को एक्सेस करेगा, यहां पे कर्सर होगा, यहां पे जो रिकॉर्ड एक्टिव होगा, जिस पे कर्सर होगा, जो लोकेशन होगी, उसी रिकॉर्ड को एक्सेस करके ये डिस्प्ले कर देगा। अब इसमें हमने डाटा के साथ डाटा ऑब्जेक्ट में कर्सर डॉट फेच वन मेथड को यूज किया है, बाकी सारा वैसे ही है। फेच वन में हमने नंबर ऑफ रोज रिट्राइव्ड काउंट लगा दिया, प्रिंट डाटा, जो भी एक रिकॉर्ड होगा, अब इसमें हमने लूप नहीं लगाया क्योंकि रिकॉर्ड ही एक होगा, तो प्रिंट डाटा, जो भी कर्सर के पास रिजल्ट है डाटा के अंदर जो गया है वो डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद फेचिंग वन मोर रिकॉर्ड, मैंने दोबारा फिर फेच वन यूज किया, तो उसके बाद ये सेकंड रिकॉर्ड पे पहुंच जाएगा। अभी सेम स्क्रिप्ट चल रही है हमारी, अगर हम इसको प्रोग्राम को बंद करके दोबारा चलाएंगे तो वापस वो फिर फर्स्ट रिकॉर्ड पे पहुंच जाएगा। अभी वो सेम स्क्रिप्ट चल रही है तो उसने नेक्स्ट प्रिंट कर देना फेचिंग वन मोर रिकॉर्ड, देन कर्सर मैंने फिर लगा दिया डाटा के अंदर फेच वन, तो उसने एक रिकॉर्ड और एक्सेस कर लिया तो हमने उसको डिस्प्ले कर दिया। अब इसने काउंट कर लिए कितने रिकॉर्ड हो गए, 2 रिकॉर्ड उसने एक्सेस कर लिए। अब आप इसके आउटपुट देख सकते हैं, ये इसकी आउटपुट विंडो है। आउटपुट विंडो में फर्स्ट जो आउटपुट आई, फर्स्ट प्रिंट की टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्राइव्ड इन रिजल्ट सेट इज 1, फर्स्ट टाइम एक रिकॉर्ड एक्सेस किया। सेम स्क्रिप्ट मैंने अगेन यूज किया फेचिंग वन मोर रिकॉर्ड, उसमें मैंने फिर फेच वन लगा दिया, तो जो हमारा कर्सर था, जो हमारी लोकेशन थी, वो सेकंड रिकॉर्ड था, तो सेकंड रिकॉर्ड उसने डिस्प्ले कर दिया फेच वन मोर रिकॉर्ड, तो दूसरे के ऊपर उसने डिस्प्ले, दूसरे रिकॉर्ड को उसने डिस्प्ले कर दिया। So this is fetch one method. Now the last step is closing, cleaning up the environment. Cleaning up the environment, student, this is used to close your connection.
It's not compulsory, but you have to close. For closing we use mycon.close. This is used to close the connection. कनेक्शन को क्लोज करने के लिए हम क्लोज मेथड को यूज करेंगे विद कनेक्शन ऑब्जेक्ट। हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट माइकॉन है, माई कनेक्शन से हमने क्रिएट कर रखा है, तो माइकॉन डॉट क्लोज, तो इससे ये कनेक्शन को क्लोज कर देगा। दिस इज द 7 स्टेप्स टू क्रिएट कनेक्शन विद MySQL। तो स्टूडेंट्स अब हम 1 by 1 प्रोग्राम डिस्कस करेंगे कि नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। हमने MySQL के अंदर हमने टेबल बना रखा है, उसमें नया रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमने प्रोग्राम बना लिया इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड। इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड में हमने क्वेरी, बाकी तो वही है, आपने कनेक्शन क्रिएट कर लिया, कर्सर क्रिएट कर लिया, देन क्वेरी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। नेक्स्ट रिकॉर्ड की मैंने वैल्यूज यहाँ पे पास कर दी, उसका रोल नंबर, उसका नेम और उसका एड्रेस। देन एग्जीक्यूट कर दिया हमने कर्सर के साथ, कर्सर ऑब्जेक्ट के साथ हमने एग्जीक्यूट क्वेरी लगा दी। क्वेरी के अंदर मैंने ये क्वेरी लिखी हुई है, वही जैसे मैंने पीछे आपको एसक्यूएल की एग्जांपल दी थी कि मैंने एसक्यूएल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया, उसके अंदर मैंने सिलेक्ट क्वेरी लगा दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैंने उसके अंदर इंसर्ट लगा दी। आप ये क्वेरी ऑब्जेक्ट ना डिक्लेयर करो तो एग्जीक्यूट के साथ यहाँ पे आपको कंप्लीट ये वाली क्वेरी यहाँ लिखनी पड़नी थी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 5 कॉमल एंड डेली। देन स्टूडेंट ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको कॉमिट कमांड इसमें यूज करनी ही पड़ेगी। आपने देखो ना कि हमने जब +1 में MySQL किया था, वहां पे हम जब भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते थे उसके बाद हम कॉमिट को यूज नहीं करते थे, वहां वो कंपलसरी नहीं है। बट पाइथन प्रोग्रामिंग में कॉमिट जरूरी है। कॉमिट क्या करता है? इट इज सेव द रिकॉर्ड। आपने नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया, उसको डाटाबेस में सेव करेगा। फॉर सेविंग द रिकॉर्ड यू विल यूज कॉमिट मेथड विद mycon, विद योर ऑब्जेक्ट। कनेक्शन के लिए जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है उसके साथ आप कॉमिट मेथड को यूज करोगे। कॉमिट मेथड इज यूज टू सेव द चेंजेस। जो चेंजेस आपने की उनको सेव करने के लिए हम कॉमिट मेथड को यूज करोगे। तो चेंजेस मैंने क्या की, मैंने नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो उस रिकॉर्ड को ये सेव कर देगा और मैसेज आएगा रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, और मैंने उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर दिया। आप इसको जब करोगे तो ये डिस्प्ले कर देगा, ये आउटपुट आ जाएगी कॉमल, डेली एंड सो ऑन। यो पहले 4 रिकॉर्ड थे, अब 5th रिकॉर्ड इसने ये वाला ऐड कर दिया। आप इसको देखना चाहते हो रन करके तो आप प्रोग्राम को देख भी सकते हैं। ये पाइथन का इंटरफेस है। अब इसके अंदर मैंने ये लिखा है। अब यहाँ पे मैं अगर 6 लगा दूं तो यहाँ पे ये 6 कर दिया। नेक्स्ट मैंने इसमें यहाँ पे कोई नेम दे दिया राधिका, और एड्रेस मैंने इसका दे दिया चंडीगढ़। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसको सेव करके रन करूंगा, देन इट विल डिस्प्ले मैसेज रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। वो रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो गया। अब रिकॉर्ड गया कहां पे, वो रिकॉर्ड गया MySQL में। MySQL में आप सेलेक्ट क्वेरी लगा के देख लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारा टेबल है, तो उसमें 6 रिकॉर्ड जो है राधिका, चंडीगढ़, रोल नंबर 6 इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से आप नया रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर सकते हो, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। और मैंने वैल्यूज जो दी थी 6 राधिका, चंडीगढ़, और वो रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो ये मैंने अभी रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। सो जैसे यहाँ पे मैंने 5 किया, अब उसमें 6 रिकॉर्ड हो गए हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज टू अपडेट द रिकॉर्ड। स्टूडेंट अगर रिकॉर्ड को अपडेट करना है, चेंजेस करनी है रिकॉर्ड में, तो किस तरह से करोगे?
पहले आप कनेक्शन क्रिएट करोगे, कर्सर क्रिएट करोगे, देन यू विल राइट क्वेरी। अब स्टूडेंट इसमें एक क्वेरी लिखने का मेथड एक और भी है। इंसर्ट में भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं आप, डिलीट में भी यूज कर सकते हो और अपडेट में भी कर सकते हो। अपडेट में मैंने दोनों मेथड किए। पहले वाला सिंपल मेथड अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इज इक्वल टू चंडीगढ़ वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 5। अब पिछली एग्जांपल में आपने देखा होना कि जिसका रोल नंबर 5 है उसका एड्रेस जो है हाँ कोमल है, उसका एड्रेस है दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली डाला है। अब मैंने इसमें उसको अपडेट किया, अब मैंने उसको चंडीगढ़ करना है, तो उसके लिए मैंने क्वेरी लिख दी, क्वेरी अपडेट स्टूडेंट्स सेट एड्रेस इज इक्वल टू चंडीगढ़ वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 5। दिस इज द सिंपल क्वेरी। सेकंड टाइम अब मैंने इसको कमेंट बना दिया। आप जो न्यू मेथड आपकी बुक में दे रखा है आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इज इक्वल टू, अगर एड्रेस है तो सिंगल कोटेशन में आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगा देनी, एड्रेस इज इक्वल टू दिस वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू दिस डॉट फॉर्मेट। इसके साथ आप फॉर्मेट मेथड को यूज करोगे। आपने क्वेरी के साथ फॉर्मेट मेथड लगा दिया डॉट फॉर्मेट। अब जो फर्स्ट है एड्रेस उसकी वैल्यू है चंडीगढ़, सेट एड्रेस इज इक्वल टू चंडीगढ़ वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 5। देन एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, कमिट दिस चेंजेस एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो फिफ्थ है अब उसमें आप देख रहे हो यहाँ पे चंडीगढ़ आ गया। पहले यहाँ के क्या था, यहाँ पर पहले था दिल्ली। पिछली जब हमने इंसर्ट किया था रिकॉर्ड, पिछली एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली है, और जब मैंने इसको चेंज करना है मैंने अपडेट किया तो इसको मैंने चंडीगढ़ कर दिया। तो इस सिंटेक्स को आपने ध्यान से देखना है कि आप बाय यूजिंग फॉर्मेट मेथड को यूज करके अगर आपने अपडेट करना है तो आप इस तरह से यूज करोगे। इसी मेथड से आप इंसर्ट भी कर सकते हो, इसी मेथड से आप डिलीट भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट है रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करना है। फॉर डिलीटिंग ए रिकॉर्ड, अब आपने कोई रिकॉर्ड उसमें से डिलीट करना है, सेम कर्सर क्रिएट कर लिया, कनेक्शन क्रिएट कर लिया, क्वेरी लिख दी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू दिस डॉट फॉर्मेट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 5। जिसका रोल नंबर 5 होगा उसको डिलीट कर देंगे। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, कमिट कर दिया, और ये मैसेज डिस्प्ले करेगा रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब ये रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा और करेक्शन को क्लोज कर देगा। तो अब जो मैंने फिफ्थ रिकॉर्ड जिसको मैंने बाद में अपडेट भी किया था वो इसने डिलीट कर दिया। इस क्वेरी से वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया। सो स्टूडेंट दिस इज अ मेथड हाउ टू क्रिएट कनेक्शन, how to insert record, how to update record, how to delete record। स्टूडेंट मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूं, it is most important, connectivity is most important। while using connectivity you have to create a project, you have to design a project and it is for 5 or 6 marks for in final practical। आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रोजेक्ट फाइल होगी, ये आपकी 5 या 6 मार्क्स का प्रोजेक्ट होएगा प्रैक्टिकल में। एक रिपोर्ट फाइल होगी और एक प्रोजेक्ट फाइल होगी। हाँ स्टूडेंट इसमें इसने 11 नंबर का दे रखा है प्रोजेक्ट, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। कनेक्टिविटी में कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज द कनेक्टिविटी विद MySQL। ओके, थैंक यू।